Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 47 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNOU. The exam pattern for this paper would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 47, that is, which of the following plays a key role in the ecological system? इनमें से कौन इकोलॉजिकल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल या फिर की रोल प्ले करता है? ऑप्शंस आर रॉक्स, रोड्स, फॉरेस्ट, नन ऑफ द अबव. देखो, रॉक्स की बात अगर हम करें, rocks they do play an important role in ecological system. Rocks are the habitat of wildlife. Rocks they provide nutrients to the soil. Rocks हमें minerals देते हैं, ठीक है, इनसे minerals मिलते हैं. So rocks जो हैं they are the basis of soil formation. हम लोगों ने पढ़ा था there are two steps in the soil formation. First step is weathering of the rocks. अगर rocks टूटती हैं तो जाके हमारी soil बनती है. अगर सॉइल बनेगी तो वेजिटेशन होगी, प्रोडक्टिविटी होगी. सो रॉक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम. रोड्स की बात करें, सो रोड्स आर फॉर ह्यूमन, ठीक है. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट जो है दे आर द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है, जिसके ऊपर वी आर डिपेंडेंट फॉर आवर फूड, ठीक है. हम लोग या वाइल्ड लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है. फॉरेस्ट दे डू रेगुलेट द क्लाइमेट. फॉरेस्ट दे कंजर्व द वाटर, दे कंजर्व द सॉइल, ठीक है. फॉरेस्ट रेनफॉल में हेल्प करते हैं. फॉरेस्ट जो है दे आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट जो है लाइक पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए वी डू नीड फॉरेस्ट, ठीक है. इवन दे हेल्प इन reducing the air pollution. So forest, अगर हम trees की बात करें या forest की बात करें, they are best noise absorber. तो हर चीज के लिए like there is forest का जो role है ना, so that is किसी से भी मैच नहीं होता, unmatchable. So forest जो है they play a key role in ecological system, ठीक है. अगर हम ecological system की बात छोड़े, अगर हम हमारी भी बात करें, we get timber from the forest, medicine हम forest से मिलती है, food forest से मिलता है. So forest जो है it is the habitat of the biodiversity. इतनी सारी जो diversity है, जितनी biodiversity ज्यादा होगी उतना हमारा ecosystem balance होएगा. So biodiversity मतलब variety of species के लिए it is the habitat, ठीक है. So forest जो है they play a key role in ecological system. Answer is C, the forest, ठीक है, not B, C, the forest. Next is the Himalayan brown bear is an example of. Options are vulnerable species. So vulnerable species होती हैं which are on verge of endangered, ठीक है. Rare species are those which are uncommon. Endemic species which are specific to a particular area. Extinct species which are like extinct, which have disappeared from earth, so those are extinct. So Himalayan bear की बात करें, brown bear की, it is a rare species, but yes it is critically endangered too. Clear? So ये किसकी example है? rare species की example है, जो कि इस time पे critically endangered है, but it is a rare species. So answer to this question is B, Himalayan brown bear is rare species. Then biodiversity is very important for which of the following creatures? So diversity या variety of living organisms या variety of living things is very important. Variety biodiversity में plants, animals, birds, mammals, microorganisms. So ये किसके लिए सबसे ज्यादा important है? Options are plants. So biodiversity, plants जो है वो दे आर खुद वो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का. अर्थवर्म इट इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमंस, सो एलियंस मतलब एक्सोटिक, ठीक है. सो एलियंस इस ऑप्शंस में ही इनमें फिट नहीं होता. सो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो यस बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ठीक है. सो जितनी ज्यादा वेराइटी होएगी स्पीशीज की, उतना ही हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड होएगा.
जितनी वैरायटी होगी उतनी ही ह्यूमन की नीड्स को इजीली पूरा किया जा सकता है। ह्यूमंस की देखो डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज होंगी, ह्यूमन की मेडिसिन की नीड, ह्यूमन की फूड की नीड, ठीक है, हमारी टिम्बर की नीड, सो हमारी फूड प्लांट्स के को लेके भी, एनिमल्स को लेके भी, ठीक है। सो हम इवन हम लोग ये बहुत सारे द जो हम बनाते हैं, लेदर है हमारा, या हमारा अ, अ, आपके जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी हमारी कमर्शियल नीड्स, ठीक है, और हमारे रहने की नीड्स, सर्वाइवल की नीड्स किससे पूरी होती है? अगर डाइवर्सिटी होएगी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज होंगी, तो हम सरवाइव कर पाएंगे सस्टेन तरीके से। अगर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज होंगी तो हमारी कमर्शियल नीड्स को भी इजीली पूरा किया जा सकता है। सो बायोडाइवर्सिटी is very important for humans. So answer is C. Fourth question is, teak monoculture has damaged the natural forest in. देखो मोनोकल्चर का मतलब होता है कल्चरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ही तरह की क्रॉप तुम लगा रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में। और नॉर्मली अगर हम टीक मोनोकल्चर की बात करें, टीक इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट। टीक जो है वुड, इसकी बहुत मतलब कमर्शियली वो बहुत यूज हो रही है टीक वुड। सो अगर तुम एक ही तरह का पेड़ या एक ही तरह का क्रॉप लगा रहे हो या ट्री लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे कमर्शियली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, सो वो मोनोकल्चर लगाना। और नॉर्मली हम लोग टीक मोनोकल्चर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए हम टीक का मोनोकल्चर कर रहे हैं। और ये इट हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन, कहाँ पे इसने फॉरेस्ट को डैमेज कर दिया? मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके हम वहां पे टीक ही लगा रहे हैं, सिर्फ टीक लगा रहे हैं, बाकी ट्रीज निकाल रहे हैं, सिर्फ वहां पे टीक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीक की कमर्शियल वैल्यू है, ठीक है, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो ऐसा करने से, टीक मोनोकल्चर करने से कहाँ का नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो डैमेज हो चुका है? गंगा प्लेन, साउथ इंडिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन, या नन ऑफ अबव? सो आंसर इज साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया में teak monoculture is very popular. For the teak monoculture, we are clearing the forest, so which has damaged the land of the forest of the South India. ठीक है, so answer is B. Last question is, what percentage of India's wild flora and mammals are on threatened list? देखो threatened का मतलब होता है the species which are under threat. किससे थ्रेट है उनको? ह्यूमन से थ्रेट है। सो थ्रेटन स्पीशीज को फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। सो वो जो ग्रुप बनाया है दैट इज ऑन द बेसिस कि कितना परसेंट उनको थ्रेट है फ्रॉम ह्यूमन। ज्यादा थ्रेट है, कम थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली दे आर पुट इनटू डिफरेंट लिस्ट। हाउएवर थ्रेटेंड का मतलब है कि ऐसे स्पीशीज, एनिमल्स की, प्लांट्स की, या आपके बर्ड्स की, जिनको हम लोगों से डेंजर है, हम लोगों से खतरा है। देन ऑन द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट जो है, परसेंट ऑफ द थ्रेट, वी पुट देम इनटू अनदर लिस्ट कि एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, तो क्या है उस लिस्ट में हम लोग उसको डाल देते हैं। सो इंडिया के जो वाइल्ड फ्लोरा या मैमल्स हैं, ठीक है, आर ऑन थ्रेटन्ड लिस्ट। कितने परसेंट जो इंडिया के वाइल्ड फ्लोरा या मैमल्स हैं वो थ्रेटन्ड लिस्ट में है? 10% of recorded wild flora and 20% of mammals. B option, 20% of recorded wild flora and 10% of mammals. C option, 10% of cultivated species of flora and 20% animals. ठीक है, देखो A, B और C में क्या डिफरेंस है? C ऑप्शन में यहाँ पे लिखे 10% ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज। सो कल्टिवेटेड स्पीशीज मतलब जिनकी हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, जिनको हम लगा रहे हैं। रिकॉर्डेड मतलब जो हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, दिस फ्लोरा एग्जिस्ट। फ्लोरा का मतलब होता है आपके प्लांट्स, ठीक है, फौना मतलब एनिमल्स। सो अगर रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा लिखा है मतलब वो वाले वाइल्ड प्लांट्स जिनके बारे में हमें नॉलेज है कि यस दे डू एग्जिस्ट। अगर कल्टीवेटेड स्पीशीज लिखा है मतलब वो प्लांट्स हैं जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जिनको हम लगा रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं जिनकी, ठीक है। सो आंसर जो है करेक्ट दैट इज ए, 10% ऑफ रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा। जितने भी हमें फ्लोरा पता है, वाइल्ड फ्लोरा पता है कि दे एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, उसमें इंडिया में स्पेशली अर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं
उसका 10% वो थ्रेटन लिस्ट में है एंड 20% ऑफ मैमल्स जो है वो भी आपके क्या है, थ्रेटन लिस्ट में. क्लियर? सो आंसर इज ए. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. So learners, those who are taking admission either in PG or UG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to the learners. We are helping you for your exam through Exampedia. We are also helping you for completing and submitting the assignments. A continuous support in IGNOU Dost will be there from the mentors who will be helping for your career development, for skilling your personal and social development. So you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.